Okay, the introduction of global halal services over today's session's outline, then overall halal industry overview, global halal economy score, then introduction to international standards, our professionals' roles, halal lifestyle, and halal authenticity. We will discuss in today our live webinar. Global halal services, this is a slogan of global halal services. This is a global visa to halal industry because this is a slogan of BINAC that accredited by BINAC accepted worldwide. And our vision is strive for excellence by offering quality services. कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अलमाइटी अनाउंस इन कुरान पाक, या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबन वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतानी इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि ए लोगों जो कुछ रुए जमीन के ऊपर है वो आप खाएं और पिएं, लेकिन वो हलाल और पाक हो, और शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये वाज़ा ये सिर्फ एक सीबी की गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि ये हर इंसान की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टडी करे, वो जस्तजू करे, वो ट्राई स्ट्रगल एंड खुद से उसको इंस्पेक्ट करे कि ये चीज़ हम खा रहे हैं, जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चीज़ हम पहन रहे हैं, वो किन अज्जा से मिलके बनी है और उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हराम अज्जा से मिलके बनी है। तो कुरान पाक में अल्लाह अलमाइटी clearly asks that, "O mankind, eat whatever is on earth that is lawful and good." This is the orders from Allah Almighty to all mankind, not only Muslims, but to all mankind. This is orders from Almighty Allah. GHS is certification body in Pakistan, halal certification body in Pakistan, accredited as per PS 4992-2016 against the category E. This is our certificate we got from Pakistan National Accreditation Council, Ministry of Science and Technology. Just we are sharing with halal, that is a growing market force. Halal, a growing market force. Muslims represent an estimated 23% of the global population, or about 1.8 billion consumers, with an average growth rate of 3% per annum. If this growth trend continues, then Muslims are expected to make up about 26% of the world's total projected population of 2.2 billion in 2030. It means that Muslims are the largest community across the globe. Increasing awareness of Muslim consumers on their religious obligations has also contributed to the increasing demand for halal products and services. As we know that we are traveling from our home stations to different destinations across the globe, and that destination might be a Muslim destination, might be a non-Muslim destination. We travel with different airlines, with different foods, with different lifestyles. So this is the need of Muslim community, and this needs arises as this is the orders from Almighty Allah to only eat and drink that is lawful and useful. That's why as the global population increases and Muslim population increases as per percentage, so there is a growing need in upcoming 10 year, the upcoming decade is the boost decade of halal industry worldwide. Okay. Overall, the trade opportunity, global halal food trade opportunity, consumer opportunity, that is average increase in 5.1% per year growth, with $1.37 trillion of spending. And that spending is from the pockets of Muslim community, that is 1.8 billion, and speedily increasing in 2030, that is estimated. This is the report from State of the Global Islamic Economy report in 2019. That's why this is very important to ensure the product we are eating, we are drinking, we are wearing, we are accompanying with us with
each and everything with our lifestyle associated should be halal. This is just the picture which shows the halal industry. That you see, the Brazil is number one who is exporting the halal products. The second number is Australia. Then you see the third number is Sudan. Then fourth number is Bangladesh, and fifth number is Turkey. So, especially in the context of Pakistan, there is a growing need to streamline the infrastructure, to streamline our industries, to promote the halal certification for gaining the leading positions across the globe. So this is the global Islamic economy score based on different factors. You see, as per the global Islamic economy scores, the Malaysia is leading because there is a good ecosystem, there is a good infrastructure supporting the products. Then UAE, Bahrain, Saudi, Indonesia, Oman, and Pakistan. Then again, being the Pakistan is the fifth largest country across the globe, but we are placing far behind in the global leaders. The top 10 halal food producers: UAE, then Malaysia, Brazil, Australia, Sudan, and then Pakistan's number. Okay. This is a best example. या आपके सामने जो मैंने आपके साथ स्लाइड शेयर की है, पाकिस्तान की बात अब हम करेंगे क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान halal industry, a gateway to success. Pakistan has complete halal regulatory infrastructure in Pakistan, alhamdulillah. दुनिया के अंदर बहुत कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पास इटसेल्फ अपना हलाल जो है वो मौजूद है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें मलेशिया की एग्जांपल दी जाती है, टर्की की एग्जांपल दी जाती है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उन चंद कंट्रीज में से एक कंट्री है जिसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर एक्टिवली और डेडिकेटेड अंदाज में, फ्रॉम गवर्नमेंट साइड टू इंडस्ट्री साइड टू कंज्यूमर साइड टू सीबी साइड, सारे लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं. और दिस इज प्राउड फॉर पाकिस्तान कि एटलीस्ट हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान का अपना स्टैंडर्ड अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है. मैं अगली स्लाइड्स में आपके साथ आई एम डिस्कसिंग दीज द डिटेल्स ऑफ दिस स्लाइड एंड स्प्लिट इनटू मेनी स्लाइड्स. मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर अपना हलाल स्टैंडर्ड अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का मौजूद है. दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो कि उधार लिए हुए स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं, जिनके पास अपना ड्राफ्ट मौजूद नहीं है. पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी ने PS 3733 डेवलप किया और उसमें पाकिस्तान के उलमाए कराम का, पाकिस्तान के जो प्रोफेशनल्स टेक्निकल लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, हमारे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं और बिजनेस कम्युनिटी, उन तमाम का एक कलीदी किरदार है. स्पेशली उसमें उलमाए कराम ने एक बहुत कलीदी किरदार अदा किया, जो पाकिस्तान का कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड अल्हम्दुलिल्लाह PS 3733 डेवलप हुआ. स्टैंडर्ड डेवलप करने के बाद उस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट सर्टिफिकेशन करने के लिए पाकिस्तान के अंदर ऑथेंटिक और कॉम्पिटेंट हलाल सीबीज मौजूद हैं. I claim openly that the Pakistan Halal CB, some of the Halal CBs, is the world's best halal certification body in Pakistan, including the Sanha, including IFANCA, including International Halal Certification, including Global Halal Services, including Punjab Halal Development Agency, and so on. These certification bodies and the leading auditors of halal certification body is the world's best halal auditors. This is proud moments for Pakistan. उसके बाद पाकिस्तान के अंदर हलाल स्टैंडर्ड अपना मौजूद है, हलाल सर्टिफिकेशंस मौजूद हैं,
और इन्फोर्समेंट के लिए अभी 2019 में 2019 के अंदर पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी भी एस्टेब्लिश हो चुकी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अम्ब्रेला के अंडर है। और पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी अब रेगुलेशंस और इन्फोर्समेंट करेगी हलाल पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की, और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अम्ब्रेला के अंडर। अभी रिसेंटली वेरी कॉम्पिटेंट एंड डेडिकेटेड डायरेक्टर जनरल्स ने चार्ज संभाला है, मिस्टर अख्तर बोगियो साहब ने, और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनकी क़यादत में ये इदारा पाकिस्तान की भी और पाकिस्तान की हलाल इंडस्ट्री की खिदमत भी करेगा, और उस पूरे सिस्टम को सिस्टमाइज करने में भी एक ममदो मावन भी साबित होगा, और एक अच्छा इमेज, बेहतर इमेज पाकिस्तान का पूरी दुनिया में जाएगा। अगली बड़ी अच्छी बात कि पाकिस्तान के अंदर हलाल ऑथेंटिसिटी के ऊपर PCSIR, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च मौजूद है। अगर आपको इंस्पेक्शंस, अगर आपको टेस्टिंग, अगर आपको R&D करवानी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह द कंट्री इज ब्लेस्ड कंट्री दैट इट हैज all pockets and all resources. As standard is established, standard making bodies is there, halal certification bodies is there, government agencies, government enforcement agencies, regulatory bodies, authorities is there, and inspections and testing labs at the end of government Ministry of Science and Technology is also have, that is PCSIR, and PCSIR is also establishing their internal halal labs. PC1 is approved for Peshawar, for Lahore, and for Karachi, and they are establishing their own halal inspections and testing labs. And last but not least, alhamdulillah, Pakistan has its own national accreditation body, that is Pakistan National Accreditation Council, that PNAC is leading worldwide, and we are now ranking in global top ranking accreditation bodies. This is proud moment for Pakistan that PNAC is also in the list of global leading accreditation body. तो पाकिस्तान के अंदर इस लिहाज से अगर हम देखें कि पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट रेगुलेटरी हलाल इंडस्ट्री के हवाले से इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, एंड नाउ वी आर रेडी टू टेक ऑफ. नाउ आवर जर्नी एग्जैक्टली स्टार्ट. दिस इज द टाइम to promote the Pakistani halal products across the globe, because we are claiming that that's why this slide is the reason that today topic title is Pakistan halal industry, a gateway to success. और ये काम हमें, जितने भी हमारे लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, इन तमाम लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को, द ब्यूटीफुल जो यहाँ पे एक एफर्ट्स पाकिस्तान की कम्युनिटी ने की है, उसको आप ग्लोबली रिप्रेजेंट भी करें. वी हैव आवर ऑन स्टैंडर्ड, वी हैव आवर ऑन हलाल सीबीज, वी हैव आवर ऑन अथॉरिटीज, वी हैव आवर ऑन एक्रेडिटेशन बॉडीज एंड इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग बॉडीज. दिस इज द प्रिवेलिंग पाकिस्तान हलाल रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान. ओके, दिस इज एज मैं अभी आपके सामने बता रहा था, पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी, आप जस्ट PHA की वेबसाइट पे जाएं और आपको पूरी डिटेल्स पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी की, जिसको मिस्टर अख्तर बोगियो साहब, और अल्हम्दुलिल्लाह आप एक्टिव हैं, वो अपने पास जो सर्टिफिकेशन बॉडीज उनको रजिस्टर कर रहे हैं, और अब आपको जो सेल्फ क्लेम हलाल लोगो मार्केट में नजर आते थे, उनके ऊपर इन्फोर्समेंट भी इंशाल्लाह अथॉरिटी करेगी. इसी तरह पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, जिनके अपने साइट के ऊपर आपको क्रेडिट बाय पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड. The very active Director General, Ms. Ismat Gul Khattak, is now leading this national institute. And our Director General is not only the leader of Pakistan, he is not only the leader of region, he is the leader of global accreditation and assessors. This is also honor for us to be in that. And this is Pakistan Standards and Quality Control Authority. तीन चीजें यहाँ पे मैं आपको क्लियर करूँ. PSQCA की डोमेन पाकिस्तान के अंदर स्टैंडर्ड डेवलप करना है. PNAC की डोमेन एक्रेडिट सर्टिफिकेशन बॉडीज जो हलाल की, हमको एक्रेडिट करना है, और PHA की डोमेन इन्फोर्समेंट करना है. PSQC का जो रोल है वो सिर्फ स्टैंडर्ड डेवलप करना है. You just go to the PSQC site, you just drop out in departments, standardization department, you got from standardization sections that this is the standards of Pakistan. You can easily download or purchase from the PSQCA standard sales section. The vision of PSQCA is the vision of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, the creator founder of Islamic Republic of Pakistan, that I would like Pakistan to become synonym and hallmark of our standards and quality in the marketplaces of the world. दुनिया के अंदर हम इस मुल्क के स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी की बात करें. This is great lines of our great founder Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and PSQCA is working with the mission to promote quality business culture through standards and conformity assessment, compete internationally.
This is the role of our young professionals. This is the role of our scientists. This is the role of our religious scholars. As in previous slide, I clearly asked you that the Pakistan has complete halal infrastructure. Here is accreditation and certification bodies. The sectors cover halal industry sector, not only dealt with food or pharma or meat or chicken or slaughtering. This is dealt with the pharmaceutical and nutraceutical. A big side is tourism, cosmetic, and healthcare. Then lifestyle, halal authenticity. Then food and feed ingredients, halal trade, and Islamic economy. This is the vast diagram and umbrella of halal industry. And in all those sectors, our professionals have opportunity. हमें इसमें अपनी अपॉर्चुनिटीज तलाश करनी चाहिए, हमें स्टडी करना चाहिए. अगर आप रिसर्च, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहते हैं तो हलाल अथेंटिसिटी, आप फार्मासिस्ट हैं तो आपके पास इसमें गैप मौजूद है, आप फूड साइंटिस्ट हैं तो गैप मौजूद है, आप केमिस्ट हैं तो इसके अंदर गैप मौजूद है. तो हमें इसमें रोल प्ले करना. ये मैंने कुछ स्लाइड्स पाकिस्तान के हवाले से, नसीब अहमद सैफी साहब हमारे पाकिस्तान को बड़ा प्रमोट करते हैं और हमें ऐसे लोगों को प्रमोट भी करना चाहिए, जो कि ऑल पाकिस्तान मीट प्रोसेसर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं और सैफी ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ हैं. उनका ये आर्टिकल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं. पाकिस्तान कैन बिकम लीडर इन हलाल सेक्टर. पाकिस्तान कैन, और इंशाल्लाह हम करेंगे. ये भी 2020 अक्टूबर 6 की ये न्यूज थी नसीब अहमद सैफी साहब की. वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान कैन अरेस्ट more than 50 billion foreign exchange annually by exporting halal meat and 40 billion by exporting sacrificial animals or hajj. ये आप खुद अंदाजा लगा रहे हैं. हमने कुर्बानी की ईद, हमारा जो त्यौहार होता है, स्लॉटरिंग जितनी होती है, आप जितना मर्जी आप काम इस सेक्टर्स में कर सकते हैं. तो रूम इज ओपन, आपके हाथ में है कि आप हमने कैसे चीजों को लेके जाना है. Then Pakistan Halal Authority aims to capture the international market with exports. Recently, जो मैंने आपको बताया, जिसके जो डायरेक्टर जनरल अख्तर बोगी साहब बने, तो उनका एक अपना विजन है, अपना एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट को हम, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे और इंटरनेशनल मार्केट में जो एक्सेस और उसमें जो हर्डल्स हैं, जो उसमें बाइंडिंग्स हैं, जो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हम इंशाल्लाह अपनी इंडस्ट्री की भी, अपने इदारों की भी, तमाम स्टेक होल्डर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग और एडवॉक्सी करेंगे कि वो इंटरनेशनल मार्केट को मीट उनके स्टैंडर्ड्स को कर सके. दिस इज द इम्पोर्टेंट लाइंस. हमेशा इनोवेटिव आइडियाज के साथ पाकिस्तान के अंदर भी, बल्कि आज से 15 साल पहले से काम कर रहे हैं. जुबैर मुगल साहब ने इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ एक म्यूचुअली इवेंट जो हलाल रिसर्च काउंसिल ने करवाया, तो उसमें उन्होंने ये एक बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट दी कि ही सेड दैट ग्लोबल हलाल मार्केट वाज $3.6 trillion, बट पाकिस्तान शेयर इन इट वाज लेस देन 1%. This is a very clear and evident statement by Mr. Muhammad Zubair. He is the Chief Executive Officer of Halal Research Council. And also said that over 90% share of the halal market was captured by the non-Muslim countries, while top 10 exporters of halal products in the Middle East were also non-Muslims. So ये एक लम्हा फिक्रिया है. This is a point to ponder. This is a point of thinking that where we are standing, that's why there is a huge gap which needs to fulfill. जो इसमें आगे बढ़ेगा वो इसको फुलफिल कर लेगा. तो पाकिस्तान में और पाकिस्तान के प्रोफेशनल्स के लिए इसमें a lot of opportunities मौजूद हैं और इसमें हमें अपना रोल प्ले करना चाहिए. बिजनेस अपॉर्चुनिटी, अगर आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं तो $1 billion का बिजनेस दुनिया में इंग्रेडिएंट्स के ऊपर हो रहा है, फीड के ऊपर हो रहा है, रिटेल कॉन्सेप्ट इंक्रीज हो रहा है. और 2020 में हमने देखा है कि रिटेल कॉन्सेप्ट ई कॉमर्स के ऊपर बहुत सारा काम हुआ है. हलाल लाइफस्टाइल इमर्जेस फ्रॉम गुड गवर्नेंस. ये हमारी रेगुलेटरी रिस्पांसिबिलिटी, गवर्नमेंट की भी रिस्पांसिबिलिटी है, हमारी सोशल रिस्पांसिबिलिटी है. स्टीवर्डशिप ऑफ द अर्थ, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, एनिमल वेलफेयर, एथिकल इन्वेस्टमेंट एंड अल्टीमेटली टू प्लीज अल्लाह. दिस इज आवर बेसिक ऑब्जेक्टिव्स, टू प्लीज अल्लाह. और हलाल लाइफस्टाइल, जिस तरह मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था, दिस इज नॉट ओनली डील्ड विद द फूड, फार्मर, कॉस्मेटिक, दिस इज डील्ड विद द एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर. जिसमें इस्लामिक फाइनेंस, वैक्सीन्स, लेदर प्रोडक्ट्स, एनिमल फीड्स, टूरिज्म, फूड्स, फार्मा, कॉस्मेटिक, इवन इंश्योरेंस कंपनीज. दिस इज द टोटल हलाल लाइफस्टाइल. Some scientific challenges we faced in halal industry, especially technological development and diversification of food source, hidden ingredients, and hidden ingredients also
Some are mashhur, and our researchers and scientists are working on it. Processing and handling of products, equipment used in preparation and packaging material use. This is some our scientific challenges, and we are our experts working on that. Halal food authentication, a new horizon, especially this slide is for our scientists, our researchers, pharmacists, food technologists. If they are exploring and the opportunities in halal industry, especially in halal inspection and testing, halal product development, technical trainings, professional service, advocacy, consultancy, advisory, quality assurance and quality control for the halal products, innovative solutions. This is the halal certification bodies in Pakistan. These are some logos. Majority of them is accredited by Pakistan National Accreditation Council. Some are in pipelines. Some logo are missing, but ये मैंने just आपके सामने ये पूरे पाकिस्तान के हलाल सीरीज के लोगो नहीं है. चंद लोगो जो मैं अभी अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा था तो मैंने यहाँ पे लगाए, कुछ लोगो मिसिंग है. लेकिन सनहा एक लीडिंग पाकिस्तान की हलाल सर्टिफिकेशन बॉडी है. रिका है, इंटरनेशनल हलाल सर्टिफिकेशन, इफान का, हलाल रिसर्च काउंसिल, पंजाब हलाल डेवलपमेंट एजेंसी, अलवाइज एंड गल्फ टेक. दीज जामिया मरकज उलूम इस्लामिया मंसूरा. जामिया मरकज उलूम Islamia Mansoura is the first in Pakistan, that is the first JACM approved halal certification body against Malaysian standard. तो मलेशिया के अंदर पाकिस्तान से किसी ने भी कोई एक्सपोर्ट करनी है तो आपको जामिया मरकज उलूम इस्लामिया मंसूरा से सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है, और ये हमारे लिए प्राइड है. उसके बाद PhD को भी एक्रेडिटेशन और जाकम की अप्रूवल मिली है, लेकिन JAMM इज द फर्स्ट जाकम अप्रूव्ड हलाल सर्टिफिकेशन बॉडी इन पाकिस्तान. हलाल अ न्यू सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जिस तरह पहले हमने बात की है, इसमें गवर्नमेंटल सपोर्ट, ह्यूमन कैपिटल, हमें तालीमी इदारों में भी इस चीज़ को सपोर्ट करना है और प्रमोट करना है कि हमारे जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पे भी हम इस एजुकेशन को प्रमोट करें. पॉलिसी मेकिंग में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, प्रोडक्शन एंड वर्कर्स हमारे जितने भी मौजूद हैं, तो ये एक न्यू सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बन सकता है. दिस इज द कंक्लूडिंग स्लाइड्स, दैट इज द कैपेसिटी बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. Capacity building of professionals, capacity building of industries, capacity building of halal CBs, capacity building और authorities. तो हर सेक्टर्स के अंदर ट्रेनिंग, एजुकेशन, अडाइड नीड, अवेयरनेस का जो काम है, ट्रेनिंग का जो काम है, इबलाग का जो काम है, आगाही का जो काम है, वो बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए. ट्रेनिंग और लोकल एंड इंटरनेशनल हलाल स्टैंडर्ड, यस, हमारे प्रोफेशनल्स को लोकल और इंटरनेशनल हलाल स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी ट्रेनिंग जो है वो करनी चाहिए. इसी तरह इंस्पेक्शंस एंड टेस्टिंग, इंस्पेक्शन बॉडीज, टेस्टिंग बॉडीज अब डेवलप होना शुरू हो गई है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी. ऑडिटिंग, सर्टिफिकेशन एंड कंसल्टिंग बॉडीज, अ ह्यूज नंबर, अराउंड पाकिस्तान के अंदर कोई 40 के करीब सर्टिफिकेशन बॉडीज जो हलाल के ऊपर काम कर रही है. 100 से अबव कंसल्टिंग बॉडीज हैं, ऑडिटिंग बॉडीज हैं. इन सारे सेक्टर्स में हमारे लिए, हमारे प्रोफेशनल्स के लिए, स्पेशली हमारे यंग प्रोफेशनल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं. खुद अपने आप को एक्सप्लोर करें, अपने अंदर जो आपकी छुपी हुई सलाहियतें हैं उसको निखारें, लर्निंग का और समझने का और रीडिंग का और स्टैंडर्ड्स को समझने का शौक पैदा करें, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करें जो अल्टीमेटली आपके काम आएगी. और सबसे इंपॉर्टेंट काम, जिस चीज का आपके पास नॉलेज हो उसको अवेयर कर, लोगों को वो बात डिसेमिनेट करें. आगे इसको बढ़ाने से चीजें बढ़ती जाती हैं. जितनी ज्यादा आप अवेयरनेस लोगों में फैलाते जाएंगे उसका अजर आपको अल्लाह ताला उसका देता जाएगा. तो ये एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम बहुत सारे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सकती है. अल्टीमेटली पाकिस्तान की प्रोडक्ट भी बेहतर होगी, पाकिस्तान की प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट मार्केट में रीच होगी. अल्टीमेटली हमारा जो मुल्क है, हमारा ये कंट्री है, इसकी इकोनॉमी भी इसमें बेहतर होगी. और हम सारे प्लेयर हैं, जिस तरह अल्लामा इकबाल ने बताया था कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा. तो इसलिए हमें हर एक को अपना रोल प्ले करना है. हलाल सर्टिफाइड इंडस्ट्री उनको प्रमोट करना चाहिए. एसएमईज को चाहिए, स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइज को चाहिए, खुद वॉलंटरली सर्टिफिकेशन ले, सिस्टम को इंप्लीमेंट करें और अपने आप को मार्केट करें कि वी आर